बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी क्लास है, इसका जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल क्लास में, वो होगा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से हमने पढ़ा था कि कंपनीज जब भी अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करती हैं या उसको मॉडिफाई करती हैं या कंपनी डाइवर्सिफाइड करती हैं, तो ऐसी कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो कि हम डिस्कस जो कि कंपनी फॉलो करती है। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जब भी कंपनी ये डिसाइड करती है कि उसे प्रोडक्ट को डेवलप करना है या आगे ले जाना है, तो कंपनी कौन कौन से फैक्टर्स को सामने रखती है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपके माइंड में व्हाट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट है क्या। और जब भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने लफ्जों में इसकी डेफिनेशन लिखें, तो वो प्लीज, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी लिखें और उसकी पिक्चर जो है वो ग्रुप में डालें, ताकि हम एक दो पार्टिसिपेंट्स की को रिव्यू करें और उसकी क्लैरिटी लेते हुए चलें। जी, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी नई प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की डेफिनेशन आप क्या समझते हैं, क्या होगी आपके नजदीक? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, बिल्कुल आ रही है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखें प्लीज अपने पेपर पे जो आपके पास रजिस्टर है, और उसकी पिक्चर एक प्लीज शेयर कर दें। मैं वेट कर रहा हूँ। पांच मिनट की एक्टिविटी है, प्लीज को शेयर कर लें। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ये आपकी जो है वो एक्टिविटी है। इससे पहले कि मैं आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो सर मैं हम कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से कुछ एक वीडियो देखें, उससे चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, और फिर हम आपकी डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी मुनासिब आप लोगों ने डेफिनेशन लिखी हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के वक्त ज़रूरी होती हैं। तो मैं एक वीडियो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, वो आप लोगों को देखनी है और इसकी जो अहम पॉइंट है वो आपने डिस्कस करनी है। Physical product, a process, or a service in process development. Lean product and process development, or LPPD, is about creating new value. Whether it's a physical product, a process, or a service, it's about creating new value for your customer. And product development is one of the most important things that your organization engages in. It drives top-line growth, and it determines up to 70% of your ongoing costs and quality potential up front. It engages the entire enterprise, and in a sense, it's actually creating the future for your organization, because the decisions that you make during the product and process development period are going to affect your organization and your customers for years to come. LPPD is not applying lean tools from the manufacturing floor to the PD environment. It's a unique set of methods, tools, and principles that have been proven effective
in the development system environment. It is, first of all, a systems approach that includes work on people, process, and tools. And it starts with the customer and the context, understanding the customer's environment and the challenges that they're facing so that you can understand how this specific product creates new value. It improves your speed to market by increasing flow, reducing rework, and increasing transparency. And it's about creating a value stream, not a product in isolation. And so you think through all of the steps that are required to deliver that value to your customer. And because of that, it engages the entire enterprise. We at the Lean Enterprise Institute have been working with a number of companies across the world in many different industries, whether it's automotive, aerospace, healthcare, consumer electronics, and found these practices to be just as effective in each of those environments. And so we're hoping that you'll join us in our mission to build a community of practitioners in order to expand our understanding and continually improve the execution of lean product and process development. तो गाइस ये कुछ चीज थी जो कि हम डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से कि कंपनीज प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब भी करती हैं तो उसके पीछे उनका मोटिव क्या होता है, क्यों प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जरूरत पेश आती है और क्यों कंपनीज जो है वो इस बात का सामने रखती हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हुए क्या क्या चीजें करना बहुत जरूरी है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि लेना बहुत जरूरी है। तो जो डेफिनेशंस आप लोगों ने लिखी वो भी एप्रोप्रिएट थी और एक डेफिनेशन ये मैं आपके सामने शो हो रही है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, तो अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। Companies develop new product in existing market. This is called product development. पहले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, companies develop new products in existing market. This is called product development. An organization that already has a market of its product might be try to follow a strategy of developing additional product aimed at its current market. जब भी कोई कंपनी अपनी करंट मार्केट के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर करे, वो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की ही जो है वो फ्रेम में वो बात आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि यूनिलीवर जो कि एक FMCG कंपनी है, उसकी सोप मैन्युफैक्चरिंग में मल्टीपल जो है वो सोप हैं, लक्स भी है और डिफरेंट दूसरी कैटेगरी भी है। जिस तरीके से टी मैन्युफैक्चरर हैं टपाल, इनकी अगर आप प्रोडक्ट उसमें लेके जाएंगे तो वो डिफरेंट जो है वो उनकी प्रोडक्ट लाइन है। तो समटाइम्स एक ही प्रोडक्ट लाइन में डिफरेंट प्रोडक्ट को डेवलप किया जा रहा होता है, डिफरेंट मार्केट्स के लिए, डिफरेंट टारगेट ऑडियंस के लिए। ये भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो है डेफिनेशन में चीज है। Even if the market, even if the new product are need not to be new to the market, they remain new to business. अगर न्यू प्रोडक्ट नहीं है तो न्यू अगर आपका बिजनेस है तो वो भी जो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो है फ्रेम में बात। समटाइम्स जैसे कि हमने देखा कि पेप्सी एक जो बेवरेजेस कंपनी है, उसने लेस, कुरकुरे ये प्रोडक्ट जो है वो ऑफर की, ठीक है। ऑल्थो के बेवरेजेस एक अलग इंडस्ट्री है और ये स्नैक्स की अलग इंडस्ट्री है, लेकिन उन्होंने रिलेट किया इस चीज को कि नीड एंड एक्सपेक्टेशन क्या है, नीड्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन की। कि जब कस्टमर आपसे कोल्ड ड्रिंक परचेज करता है तो वो चाहता है कि उसके साथ कुछ आप वो ड्राई आइटम भी परचेज करें खाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये मार्केट और ये नीड भी हम अपनी तरफ ही शिफ्ट करते हैं, लोग हमारे ही कोल्ड ड्रिंक लें या ड्रिंक लें और हमारे ही स्नैक लें। तो पेप्सी और कुरकुरे या पेप्सी और निम्को
अब तो कुरकुरे ने निम्को भी इंट्रोड्यूस करा दिए, तो ये भी एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट बिल्कुल अलग जो है वो रेंज में जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर पेप्सी जो है वो चली जाती है किसी ऐसे स्ट्रेटेजी की तरफ कि जहां पर उसको ये जो खाने पीने की फूड आइटम से हट के कोई काम, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स वेयर में चली जाती है, शूज बनाने लग जाती है पेप्सी कंपनी, तो ये डाइवर्सिफिकेशन कहलाती है कि आप अपने बिजनेस से हट के अपने बिजनेस को आपने रन किया है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपके सामने शो हो रही है, तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। तो ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो है वो डेफिनेशन है, डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सो दैट अपीयर न्यू एंड ऑफरिंग दीज प्रोडक्ट टू द करंट और न्यू मार्केट। कि जब आप नई प्रोडक्ट बनाते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं करंट जो है करंट अपनी रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए, यानी करंट आपकी मार्केट है उसको सामने रखते हुए, या फिर एक नई मार्केट को डेवलप करते हुए, दोनों सिनेरियो में आप जो है वो न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी की तरफ मूव करते हैं। तो अगर एग्जाम में आपके सवाल आता है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की डेफिनेशन बता दें, तो वो आपके सामने मौजूद है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन हो सकती है, होपफुली आप लोगों ने ये नोट डाउन कर ली होगी। ओके जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले कंपनीज कब ये महसूस करती हैं कि उन्हें न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना है या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाना है, ये एक बड़ा सवाल है। बिकॉज कंपनीज के पास ऑब्वियसली न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से हमेशा से एक ऑप्शन ओपन होता है कि वो न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करें, और कौन सी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो अपनी प्रोडक्ट लाइन को इनहेंस करे, प्रोडक्ट सर्विसेज को इनहेंस करे। ठीक है, तो वो कौन से ऐसे रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट होंगे जिसमें कंपनीज जाती हैं और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, इस पर्टिकुलर